dear students, welcome back to the class of BA Business Administration 12th Standard NCERT. So again a common information that whenever you are sitting in the class, just keep the textbook with you, because in this lecture, in my video, I will explain you everything one by one line and one by one word of textbook, with which you will able to understand everything and learning become easy to you. Today we are going to start a new chapter, that is a planning. Okay, and the planning word is not new for you, because everybody is doing a plan, making a plan in their life and daily life. Okay, so what is planning? Here we are not studying regarding the planning of individual. Here we are studying the planning of business activities, regarding the business unit. Okay, so the key word which I will explain you. First of all, you think what is planning? Planning means to think something regarding future activity. Every time whenever planning comes into mind, we are also thinking about the future. So a very important thing, that planning is a future activity. Okay, so the one keyword I will give you in this lecture, that planning means forecasting. Planning means forecasting the business activity to achieve business goals, for accomplishment of objective, we can say. Planning means forecasting of business activity to achieve business goals. Okay, so this is the simple meaning given in my words, which you can also write in the exam. Nobody can say that this is wrong. It is absolutely correct. Whenever we are thinking about the business activity, that how we can achieve our goal, what to do, when to do, okay, who will do, which activity will come after what, so that is a planning. Okay, so we are making any kind of forecasting to achieve the business goal, it's a planning. But according to textual, many writers have given many meaning in the book. We will discuss regarding that. You can see beta, Bill Gates, he said that task of planning is choosing. Okay, task of planning is choosing, means to select something. Okay, and second, George R. Terry, he has said that function of planning means assumption of result. Result को सोचना. Policy to follow function, वो पॉलिसी बनना कि हम कोई भी काम कैसे करें. पॉलिसी मीन्स टू मेक द प्रोग्राम, दैट हाउ द फंक्शन विल बी डन, एंड टू डिसाइड द मेथड टू बी फॉलो, कौन सी मेथड से काम करेंगे. ओके, मतलब फ्यूचर एक्टिविटी हुई. ओके, सेम अगेन अकॉर्डिंग टू जॉर्ज और टेरी, फंक्शन ऑफ प्लानिंग मीन्स assumption of result, policy to follow function, and to decide the method to be followed. Okay, this is a planning. So in this lecture we will discuss two questions. First is the characteristics of planning, second is types of planning, plans, different kind of plan. First number question is characteristics of planning. So for characteristics of planning, these are the different 11 points given in the textbook. First of all, we will discuss that. Then I will give an idea that how to remember these characteristics. First of all, we will discuss it. Okay. Later on, I will explain you how to remember these points. So be in touch with me always for better result and better understanding. First number characteristics is universal process. What is the meaning of universal process? Universal process means done in all sectors, where everybody who accept it. Planning is a thing which is accepted by all. All means all sector, not only industrial sector. See, either it is the industrial sector, agriculture sector, service sector, educational sector, whatever sector are there, whichever sectors are there, every sector has accepted that planning should be done. So this is the characteristic, it is a universal process, that means accepted by all. Now in textbook, planning is a universal process. It is presented in every field like business, politics, education,
religion and social field, means accepted by all. Second number is the primary function. What is primary function? In last chapter, that means chapter number 1, you have done managerial function. Managerial function which was given by different writers like Henry Fayol, Luther Gulick, Peter Drucker. Okay, you can see in all managerial function, every time first point is planning, because after planning different managerial function start. याद आया कुछ? Managerial function means what? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, सब में अलग अलग कहे हैं, लेकिन पहली पॉइंट सबकी क्या है? प्लानिंग ही है. सो प्लानिंग ही एक ऐसा है जिसके बाद ही ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और सब कुछ होता है. तो प्लानिंग क्या हुआ? प्राइमरी फंक्शन हुआ, बिकॉज प्लानिंग के सिवा कोई भी दूसरा मैनेजर फंक्शन अचीव हो ही नहीं सकता, फुलफिल हो ही नहीं सकता. सो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. Management start with planning. Other function like organizing, staffing, directing, controlling are implemented on the basis of planning. इसीलिए planning क्या है? Primary function है. Next is conscious and mental process. What is conscious? Conscious का मतलब क्या होता है? Conscious means जागरूकता. मतलब ये वो एक्टिविटी है, एक तो मेंटल थिंकिंग और कॉन्शियस मतलब बिल्कुल परफेक्ट, जो बिल्कुल ध्यानपूर्वक, चौकसाई बोलते हैं, चौकसाई, जागरूकता, उसके तरह से हमें करनी पड़ती है. ओके, तो प्लानिंग कोई भी प्लानिंग इज नॉट डन बाय एनीवन हु इज डूइंग बिजनेस, बट इट इज डन बाय ओनली एक्सपर्ट्स. सो प्लानिंग इज कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस. Planning is conscious and mental process because in planning decision are taken consciously, बिल्कुल जागरूकता के साथ, सोच समझ के, बिल्कुल फ्यूचर का सोच के. ओके, जिससे क्या होगा, क्या हो सकता है, ये सब जानकारी होगी, वही इंसान प्लानिंग कर सकता है. जो असम्पशन कर सकता है वही प्लानिंग कर सकता है. एंड बेसिस ऑफ कैलकुलेटेड असम्पशन. नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी. प्लानिंग is a flexible point. Planning should be flexible. Why? See, once you made the plan, and as you know that many internal and as well as many external factors affect the business, like political factors, natural factors. Okay, ये बहुत सारे फैक्टर है जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, जो कब होंगे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं. तो प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर अराइज हो तो हम अपने प्लानिंग को उसके एटमॉस्फेयर के मुताबिक कन्वर्ट कर सकें. ऐसा नहीं है कि प्लानिंग शुड नॉट बी रिजिड, फिक्स नहीं होना चाहिए कि जो काम शुरू किया बस वही काम हो, उसके सिवा हम नया काम न कर सकें. समझे बेटा? ऐसा ना कि हम जो एक बार प्लानिंग काम कर दिया हमने वो फिर से हम न कर सके. बराबर, मतलब प्लानिंग शुड नॉट बी रिजिड, इट शुड बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर. इट शुड बी चेंजेबल, उस पर चेंजेस हो सके और फिर नए एटमॉस्फेयर के मुताबिक हम काम कर सके, ऐसा प्लानिंग होना चाहिए. सो सी, प्लानिंग contain various calculation and assumption. Business enterprise is affected by external factors, therefore necessary changes should be made in planning as per time. Planning में according to time changes हो सके, बराबर, ऐसा प्लानिंग होना चाहिए. ओके, नेसेसरी चेंजेस शुड बी मेड इन द प्लानिंग एज पर टाइम, सर्कमस्टेंस एंड सिचुएशन. फ्लेक्सिबिलिटी इज द प्री कंडीशन ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग इज नॉट स्टैटिक एलिमेंट, कोई रिजिड एलिमेंट नहीं है. द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिसाइज. प्रिसाइज किसको बोलते हैं? परफेक्ट. प्रिसाइज मीन्स परफेक्ट, चौकस, श्योर. प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूचर. The matter considered in planning are to be studied exactly. जो भी जिस बारे में तुम प्लानिंग कर रहे हो, जो ऑब्जेक्ट के बारे में प्लानिंग कर रहे हो, वो सब चीजें पहले आपको ध्यान से उसकी स्टडी करनी है, उसका एनालिसिस करना है. बराबर, तुम्हें विच इज योर ऑब्जेक्ट, हाउ कैन बी अचीव, विच रिसोर्सेज आर अवेलेबल, हर चीज का पहले आपको एनालिसिस करना है, स्टडी करनी है. स्टैटिस्टिकल डेटा, कलेक्टेड इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा, ये सब करके द परफेक्ट मस्ट बी परफेक्ट एंड प्रिसाइज. तो जो भी तुम जब प्लानिंग कर रहे हो तो आप जो ऑब्जेक्ट के लिए प्लानिंग कर रहे हो उसकी स्टैटिस्टिकल डेटा होनी चाहिए आपके पास, हर चीज का एनालिसिस करना है और वो सब चीजें परफेक्ट होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए.
नेक्स्ट इज फोरकास्टिंग इज द एसेंशियल। फोरकास्टिंग मतलब वही फ्यूचर एक्टिविटीज, समझ, फ्यूचर इज मेन एलिमेंट ऑफ द प्लानिंग। फोरकास्टिंग इसमें बहुत जरूरी है। फोरकास्टिंग इज डन बाय कंसीडरिंग फ्यूचर अनसर्टेनिटीज while making a plan of business unit. Therefore, forecasting and planning are considered as first function of मैनेजमेंट, फर्स्ट फंक्शन ऑफ प्लानिंग। फोरकास्टिंग जो फ्यूचर में, फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज आपको मालूम होनी चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। वो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को तुम फोरकास्ट कर पाओगे, समझ पाओगे, तो ही तुम प्रेजेंट में प्लान कर सकते हो। आपको अगर ऐसा अंदाजा ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, तो आपका प्लान कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो प्लान फिर रिजिड बनेगा। लेकिन अगर फिर वो फ्यूचर अनसर्टेनिटी अराइज हुई जो आपको मालूम नहीं थी, आपका पूरा प्लान फेल हो जाएगा। सो फोरकास्टिंग बहुत जरूरी है। लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव, प्लानिंग में क्या होता है, प्लान, हमारे पास हर काम करने के अलग अलग अल्टरनेटिव्स होते हैं। हर बिजनेसमैन को एक काम करने के लिए अलग अलग अल्टरनेटिव होते हैं, बराबर। तो उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव उसको सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव, हर काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें से बेस्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमको प्लान करना है। Planning is in any field include various plan and alternatives. For example, there can be many alternatives to increase the sales of future. अगर जैसे एग्जांपल दे रहा है कि अगर फ्यूचर में सेल बढ़ानी हो तो सेल बढ़ाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, प्राइस कम कर दो, रिडक्शन इन प्राइस, सेल्समैन को ट्रेनिंग दो, वो एक्सपेंस करो, अट्रैक्टिव ऑफर्स प्रोवाइड करो, इससे आपका सेल बढ़ सकता है। तो सिलेक्शन आपको करना है कि कौन सा बेस्ट वे होगा जिससे आप अपना सेल्स इंक्रीज कर सकते हो। तो हमारे पास हर काम करने के अल्टरनेटिव होते हैं, तो प्लानिंग में भी हर चीज के अल्टरनेटिव सोचने होते हैं। कंसर्न विद द फ्यूचर, प्लानिंग प्रिज्यूम अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन फ्यूचर। प्लानिंग में हमेशा फ्यूचर अनसर्टेनिटी सोची जाती है। फोरकास्टिंग एंड असम्पशन आर डन लेटर ऑन, उसके बाद पहले अनसर्टेनिटीज मालूम होनी चाहिए, उसके बाद फोरकास्टिंग होती है, उसके बाद प्लानिंग की जाती है। इन शॉर्ट, प्लानिंग इज रिलेटेड विद द फ्यूचर बिकॉज इट इज इवैल्यूएटिंग फ्यूचर एट प्रेजेंट एंड अकॉर्डिंगली मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द सेम। फ्यूचर के बारे में प्रेजेंट में ही सोचा जाता है। कंटिन्यूस प्रोसेस, प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, बिकॉज जब तक बिजनेस चलेगा प्लानिंग तब तक चलेगा। ओके, एक प्लान खत्म होगा, नेक्स्ट प्लान करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट फिनिश होगा, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट अराइज होगा। तो हर जैसे ऑब्जेक्टिव चेंज होते रहेंगे, ऐसे आपको प्लानिंग भी बार बार करनी है, प्लानिंग कभी फिनिश नहीं हो सकती। प्लानिंग इज कंटिन्यूस एंड पेरेनियल प्रोसेस। व्हाट इज पेरेनियल प्रोसेस? पेरेनियल मतलब निरंतर, जो बिल्कुल कंटिन्यू रहे, उसको बोलते हैं पेरेनियल। प्लानिंग इज दैट प्रोसेस विच बिगन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूज टू द एंड। बराबर, प्लानिंग शुरुआत से शुरू होता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन होता है और चलता रहता है। एज पर द टाइम एंड सर्कमस्टेंस प्लान आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी चेंज। और क्योंकि समय सर जैसे जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होगा, प्लान भी चेंज होते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी, बट नेचुरल, प्लानिंग करने से पहले आपका ऑब्जेक्ट डिसाइड होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी मतलब प्लानिंग किसे बोलते हैं? प्लानिंग वही चीज है जो ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए की जाती है। तो प्लानिंग का मेन फोकस, अगर कहें मेन सेंटर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी हुआ। प्लानिंग इज मेड टू अचीव द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट डिसाइड द फ्यूचर टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव। अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बिकम इजी इफ टारगेट आर पैरागमेटिक। पैरागमेटिक मतलब क्या? व्यवहारू। अगर आप व्यवहारू मतलब क्या समझाऊं मैं आपको? आपके पास जो रिसोर्सेस हैं, अगर प्लानिंग भी उसके बेस पे है तो वो सक्सेस होने वाली है। आपके पास रिसोर्सेस ही नहीं है, फिर भी आप उसके बियॉन्ड प्लानिंग करते हो, उससे बड़ी प्लानिंग करते हो, तो नेचुरली आपके हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है एंड प्लानिंग विल बी फेल। तो यहां पे बोलने की बात यह कि अगर प्लानिंग जो है वो आपकी हमेशा अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेस होगी, बराबर, तो इट विल बी अचीव सक्सेस और ऑब्जेक्ट आपको अचीव हो जाएंगे। Thus planning is the objective oriented activity and required decision process। जैसे मैंने कहा था, वेरियस अल्टरनेटिव होते हैं।
वेरियस ऑल्टरनेटिव होते हैं, क्या करना होता है, हर समय उसमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमको अचीव करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। और जैसे जैसे एटमॉस्फेयर अगर चेंज हो तो हमको इंस्टेंट डिसीजन कई लेने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू प्लान। तो प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। प्लानिंग इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव, वेरियस ऑल्टरनेटिव आर कंसीडर एंड assumption आर मेड एंड द डिसीजन आर टेकन टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज नेसेसरी इन प्लानिंग। बराबर बेटा, तो समझ में आया। अब मैं ये पॉइंट कैसे लर्न करोगे मैं आपको उसकी हिंट दे रहा हूं। बराबर बेटा, लिसन केयरफुली। प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आप ये वर्ड याद करो कैरेक्टरिस्टिक, PUL, पुल, फोर्स, पुल फोर्स, P के ऊपर स्क्वायर, F के ऊपर स्क्वायर और C के ऊपर क्यूब, पुल फोर्स। अब ये वर्ड तुम याद करके अपनी नोटबुक में अकॉर्डिंग टू ये वर्ड पॉइंट को अरेंज करो। जैसे कि P है तो P मतलब P स्क्वायर, मतलब P 2 बार है तो एक है प्राइमरी फंक्शन, एक है प्रिसाइज। ओके, फिर U है तो U का मतलब क्या है, देखो इसमें यूनिवर्सल प्रोसेस। अब L है तो L क्या है, लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव। फिर F स्क्वायर है तो 2 F इसमें होंगे, एक फ्लेक्सिबिलिटी, ओके, एंड फोरकास्टिंग इज एसेंशियल। इस तरह से आप ये वर्ड के मुताबिक अपनी नोटबुक बनाओ और उसमें पॉइंट लिखो और फिर इस वर्ड के ऊपर से 5-5 बार अगर पॉइंट बोलोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। तो क्या वर्ड निकला हमारा, पुल फोर्स। पुल फोर्स, P के ऊपर स्क्वायर, F के ऊपर स्क्वायर, और सिंपल बात है हर लेटर के 2 लेटर छोड़ के पावर है, स्क्वायर, स्क्वायर और क्यूब। ओके बेटा, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. Now we are going to discuss a second question, that is the types of plan. There are total 6 type of plans. 6 टाइप के प्लान होते हैं बेटा. अब ये प्लान के टाइप एग्जाम में कैरेक्टर से 5 मार्क में आता है, पर टाइप्स ऑफ प्लान 5 मार्क में, यहाँ 90, ये तो 100% है कि टाइप्स ऑफ प्लान का कुछ ना कुछ तो एग्जाम में आएगा ही आएगा. फिर वो 2 मार्क का कोई सिंगल प्लान पूछे, या 3 मार्क में 2 प्लान पूछे, या 5 मार्क में टाइप्स ऑफ प्लान पूछे. अब फर्स्ट नंबर प्लान कौन सा है बेटा, स्टैंडिंग प्लान. पहले इसकी मीनिंग समझा दूं. स्टैंडिंग प्लान मतलब क्या होता है, बिजनेस के जो भी रेगुलर वर्क होते हैं ना, डेली वर्क, तो डेली वर्क के लिए जो प्लान किए जाते हैं ना, उसको स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं. क्योंकि डेली वर्क के लिए कोई बार बार प्लान नहीं करते हैं. जो काम आज होगा वही कल होगा, वही परसों होगा. तो यही एक ही प्लान होगा जो आज फॉलो करना है, कल भी फॉलो करना है, परसों भी फॉलो करना है. आई बात समझ में. तो जो काम रिपीटेटिव नेचर का होता है उसके लिए जो एक ही प्लान होता है जो चलता रहता है, स्टैंड मतलब वही प्लान है जिसके मुताबिक बिजनेस में क्या होगा, काम होगा. ऐसे प्लान को स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं जो रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क के लिए किया जाए. ओके, सी स्टैंडिंग प्लान रिप्रेजेंट गाइडलाइन फॉर द बिजनेस इन रिपीटेटिव सिचुएशन, हेंस स्टैंडिंग प्लान आर यूज रिपीटेडली. ये वो प्लान होते हैं जो बार बार यूज होते हैं. When there is a repetition of organizational activity, जब ऐसा कोई बिजनेस हो जिसमें बार बार वही काम होता हो, and standard policy are decided for promote the action, it is non-standing plan. बस यहां तक लर्न करो. द प्लान मतलब बिजनेस में जो रिपीटेटिव एक्टिविटी के लिए जो प्लान किया जाए, बराबर, उसे स्टैंडिंग प्लान कहते हैं. सेकंड नंबर प्लान है बेटा, सेकंड नंबर इज स्ट्रेटेजिक प्लान. ये समझने वाला प्लान है, इसको खास ध्यान रखना. ये बिजनेस की फिलोसॉफी के ऊपर डिपेंड रहता है. बिजनेस की फिलोसॉफी क्या है, बिजनेस कैसा काम करेगा, बिजनेस के ड्रॉबैक्स क्या हैं, बिजनेस की अच्छाइयां क्या हैं, ये सब सोच के जब कोई प्लान तैयार किया जाता है जो बिजनेस की एक स्ट्रेटेजी है, उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान. बिजनेस यूनिट डिसाइड द ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू देयर फिलोसॉफी. हर बिजनेस अपनी फिलोसॉफी के मुताबिक अपने ऑब्जेक्ट डिसाइड करता है, अपने वर्किंग नेचर के मुताबिक, अपने ड्रॉबैक जान के, अपनी अच्छाई जान के. इट इज टू बी डिसाइडेड थ्रू विच फिलोसॉफी बिजनेस यूनिट विल फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ. इट विल बी डिसाइडेड, पहले ये नक्की होता है कि हमारा बिजनेस किस फिलोसॉफी से चलेगा.
इट इज नोन एज बिजनेस ऑब्जेक्टिव, जिसको बिजनेस का ऑब्जेक्ट कहते हैं. सो फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी आर डिसाइडेड and a business unit decide the plan after considering of strength and drawbacks. तो long term short term अपनी strength अपनी drawback ये पूरी फिलोसॉफी जान के जो बिजनेसमैन प्लानिंग करता है उसे स्ट्रेटेजिक प्लान कहते हैं. नाउ थर्ड नंबर इज टैक्टिकल प्लान. अब ये टैक्टिकल प्लान क्या है बेटा? टैक्टिकल प्लान जो होते हैं वो अभी आपने जो ऊपर के प्लान पढ़े दोनों, वो एक था रिपीटेड नेचर के लिए जो रेगुलर प्लान बोलते हैं, दूसरा आपने देखा जो बिजनेस की फिलोसफी के ऊपर डिपेंड है, तीसरा ये प्लान वो है जो शॉर्ट टर्म प्लान है, जो मिडल लेवल के डिपार्टमेंटल हेड बनाते हैं अपने ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए. For the accomplishment of business objectives, short-term plan are prepared by middle level for management is known as tactical plan. These plans are usually span 1 year or less. एक साल और एक साल के कम समय के लिए ये प्लान होते हैं short term. These plan clarify short-term objective. Hence, business activities remain goal-oriented and take place in systematic manner. तो business activity रेगुलर होती रहे बराबर, और डिपार्टमेंटल हेड जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए एक साल या एक साल के कम समय के लिए जो प्लान बनाते हैं उसे कहते हैं टैक्टिकल प्लान. फोर्थ है ऑपरेशनल प्लान. ये 90% टैक्टिकल प्लान की तरह ही होता है, जो ये भी शॉर्ट टर्म ही होता है. सी बेटा, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं लाइन पढ़ रहा हूं, आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज करना. ऑपरेशनल प्लान आर मेड टू अचीव, आर के बाद लिखना है मेड टू अचीव द स्पेसिफिक रिजल्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट. बीच में एक्सपेक्टेड प्लान वर्ड कट करना है. अब मैं पढ़ रहा हूं, ऑपरेशनल प्लान आर मेड टू अचीव द रिजल्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट, वर्क ग्रुप एंड इंडिविजुअल. अब खाली फर्क क्या है टैक्टिकल में इसमें कि टैक्टिकल मोस्टली मिडिल लेवल मतलब डिपार्टमेंटल हेड ही बनाते हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट होते हैं, इंडिविजुअल दूसरे ग्रुप हैं बराबर, वर्क ग्रुप्स हैं, ये सब जो लोग हैं वो जो प्लान करते हैं अपने ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए उसे कहते हैं ऑपरेशनल प्लान. जो लोग ऑपरेशनल बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटी में कनेक्ट होते हैं वो लोग ये प्लान करते हैं. Generally, these plans are for short duration for 1 year. For example, देखो दिया है monthly और quarterly production plan are made to achieve the annual production. जैसे पूरे साल का सपोज जो प्रोडक्शन होता है, सपोज एक बिजनेसमैन को पूरे साल में 60,000 यूनिट बनाने हैं, तो उसको पहले नक्की करना पड़ेगा कि हर महीने 5,000 बनाएंगे तो जाके 60,000. तो पूरे ईयर के प्लान को शॉर्ट प्लान में कन्वर्ट किया जाता है. इन प्लान को कहते हैं ऑपरेशनल प्लान. नेक्स्ट इज सिंगल यूज प्लान. ये वो प्लान है जो एक ही बार यूज होते हैं, बिकॉज एक्टिविटी चेंज होगी प्लान भी चेंज होगा. मैं एक हिंट दे दूं जो बिजनेस का नहीं है लेकिन फिर भी, आर्मी क्या होती है, आर्मी का प्लान कैसा होता है, जो एक बार प्लान करती है फिर वो रीयूज नहीं कर सकते बराबर. तो सिंगल यूज प्लान वो बिजनेसमैन करते हैं जिनकी एक्टिविटी बार बार चेंज होती है. जैसे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जिसको सपोज एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को एक प्रोजेक्ट मिला तो उस प्रोजेक्ट का प्लान होगा, फिर नया प्रोजेक्ट होगा तो नया प्लान होगा. इस तरह प्लान बदलते रहेंगे, तो जो प्लान एक ही बार यूज हो गया उसे बोलते हैं सिंगल यूज प्लान. A useful plan is prepared for achievement of special objective. This plan is made for special activity. ये प्लान स्पेशल एक्टिविटी के लिए होता है. जैसे मैंने बताया कि एक प्रोजेक्ट मिला तो उस प्रोजेक्ट के बारे में. One time plan is applied to those activity which do not reoccur. जो फिर से नहीं होने वाला है उनके लिए प्लान होता है, जो एक्टिविटी फिर से नहीं आने वाली है. For example, activity like ship making, construction of house, packaging, printing, etc. And last is contingency plan. Contingency plan वो होते हैं जिसको बोलते हैं accidental plan. ये वर्ड है accidental. बिजनेस सपोज एक प्लान से काम कर रहा है, लेकिन ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल फैक्टर सपोज करो सडनली नया प्लान बनाना पड़े, उसे कहते हैं कंटीजेंसी प्लान. सडनली जो प्लान बनते हैं. बिजनेस यूनिट हैज टू कोऑर्डिनेट विद चेंजिंग सिचुएशन. बिजनेस एनवायरनमेंट ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, नेचुरल फैक्टर चेंजेस. And due to this reason, if changes are made in original plan, अगर ओरिजिनल प्लान में तुम चेंज करके नया प्लान बनाओ, it is called contingent plan, मतलब accidental plan.
ओके बेटा, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब इसको लर्न करने के लिए मैं आपको एक कीवर्ड दे रहा हूं एंड दैट इज टाइप्स के लिए, दैट इज टॉक्स। टॉक्स, T फॉर टैक्टिकल प्लान, O फॉर ऑपरेशनल प्लान, C फॉर कंटीजेंसी प्लान, S 2 बार है स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान। इस तरह से आज मैंने आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, पुल फोर्स एंड टाइप्स, टॉक्स स्क्वायर, बराबर। सो आई होप बेटा आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, बराबर। अब कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू वेरी मच।